Welcome students, I am Rajesh Kumar with the chapter Solid State. Today we are taking properties of solids, and first property we are taking is electrical properties of solids. On the basis of electrical properties, solids can be divided into three categories: conductors, insulators and semiconductors. Conductors are the substances which are good conductors of electricity. These have very high values of conductivity ranging from 10 की power 4 to 10 की power 7 ohm inverse meter inverse. These are further classified into two categories. Number one, you can say metallic solids, and number two, electrolytic solids. Metallic solids are the materials in which during conduction there takes place no chemical change, whereas in electrolytic solids there takes place chemical change during conduction. All metals come under metallic solids, as we have discussed in metallic bonding during classification of solids. In metallic solids, the conductivity is due to flow of the presence of फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. जैसा कि आप देखते हैं, हमने कॉपर घर में या सिल्वर यूज़ करते हैं या आयरन यूज़ करते हैं, जब हम इनमें करंट फ्लो करते हैं तो चाहे आप सालों साल करंट फ्लो करते रहो, मेटल के केमिकल बिहेवियर में कोई चीज़ हमें देखने में नहीं मिलता है. सो दीज आर मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इन दैम कंडक्टिविटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ or presence of free electrons. In electrolytic conductors, for example, sodium chloride, which are electrolyte, potassium chloride, during conduction there takes place chemical change. In them, the conductivity is due to presence of oppositely charged ions. For example, when NaCl is melted or is dissolved in aqueous medium, it forms sodium cations and chloride anions. So when electric current is passed between these molten solutions or in aqueous medium, they migrate towards oppositely charged electrodes and are responsible for flow of current. They are bad conductors of electricity in solid form because in solid form the ions are tightly packed, they cannot move. Number second we are taking is insulators. Insulators are, as we know, bad conductors of electricity. Their conductivity values are almost negligible. You can say 10 minus 10 to 10 minus 20 ohm inverse meter inverse. Generally these contain all paired electrons or no free electron. For example, rubber, plastic, even solid ionic compounds like NaCl are also insulators. Number third one is semiconductors. In semiconductors, the conductivity values lies between conductors and insulators. Their range may be divided into 10 की पावर 6 power to 10 raised power 4 ohm inverse meter inverse. For example, germanium. Germanium is a semiconductor whose conductivity lies between conductors and insulators. नेक्स्ट प्रॉपर्टी करने से पहले हम सेमीकंडक्टर को कुछ और आगे डिटेल में करना चाहेंगे. वी आर टेकिंग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. यू कैन से there are two main types. Number one is intrinsic semiconductors and number two is extrinsic semiconductors. All pure semiconductor materials are categorized as intrinsic semiconductors. जैसे कि प्योर जर्मेनियम है, प्योर जर्मेनियम को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ये जो प्योर मटेरियल होते हैं बच्चे, इनकी कंडक्टिविटी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम इनको किसी प्रैक्टिकल यूज में ला सकें. इनको प्रैक्टिकल यूज में लाने के लिए वी ऐड इम्प्योरिटीज़ टू प्योर मटेरियल्स, जिससे इनकी कंडक्टिविटी कुछ हद तक बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और वही इम्प्योर मटेरियल्स को हम बोलते हैं एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स. सो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स. अब हम इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले हम एक डेफिनेशन करने जा रहे हैं.
doping. The incorporation of a foreign, or you can say impurity, into a pure material is called doping. जैसे से हमने जर्मेनियम नाम के क्रिस्टल में आर्सेनिक नाम की इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो आर्सेनिक को जब जर्मेनियम में ऐड करेंगे वी से वी हैव डन डोपिंग, एंड द एडेड आर्सेनिक और एडेड impure element is also called dope element. So with the doping, pure material becomes impure and the semiconductor becomes extrinsic semiconductors. With this, the conductivity becomes slightly reasonable and can be practically used. इसके लिए बच्चे हमने एक एग्जांपल ली है, जैसे हमने से ये एक प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल लिया है। एज वी नो जर्मेनियम की 4 वैलेंसी होती है, तो जर्मेनियम कैन 4 कोवलेंट बॉन्ड्स विद एडजॉइनिंग जर्मेनियम एटम। से सेंट्रल जर्मेनियम लेते हैं हम, इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, 1 हेयर 1 हेयर 1 हेयर 1 हेयर। इसी तरह से ये नेटवर्क जो है वो फैला होगा जर्मेनियम एटम का। आगे हमने क्या किया है बच्चे, नेक्स्ट हमने 4 जर्मेनियम के बीच में हमने एक होल, एक वैकेंसी छोड़ दी है, से जहाँ पे हम इम्प्योर एलिमेंट आर्सेनिक ऐड कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जर्मेनियम का वैलेंसी 4 है पर आर्सेनिक का 5 है, आर्सेनिक के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सॉरी। तो आर्सेनिक क्या करेगा, इट फॉर्म्स 1 कोवलेंट बॉन्ड हेयर 1 हेयर 1 हेयर एंड 1 हेयर। अभी भी आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। जर्मेनियम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड कोवलेंट बन रहे हैं। आर्सेनिक के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसने 4 कोवलेंट बॉन्ड तो बना दिए बट एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास फ्री बच गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन कंडक्टिविटी। तो जगह जगह पे आर्सेनिक डोप करने से, आर्सेनिक इम्प्योरिटी ऐड करने से जर्मेनियम में जर्मेनियम की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो क्योंकि जर्मेनियम की कंडक्टिविटी बढ़ गई है तो इसको हमने नाम दिया है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की फर्स्ट टाइप है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन इसलिए नाम दिया गया है, एन मीन्स नेगेटिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, सो वी आर हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ड्यू टू arsenic. These type of semiconductors are formed when group 14 elements are doped with group 15 elements. जैसे जर्मेनियम ग्रुप 14 एलिमेंट है, उसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है। आर्सेनिक ग्रुप 15 एलिमेंट है, उसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया जिससे कंडक्टिविटी बढ़ गई और हमारे पास आ गया एन टाइप का इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इसका रिवर्स, अगर हम ग्रुप 14 में ग्रुप 13 एलिमेंट ऐड करते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने फिर से जर्मेनियम बनाया हुआ है, ऐसे 1 2 3 4 से हमने जर्मेनियम जो ग्रुप 14 एलिमेंट है उसमें गैलियम ऐड कर दिया ग्रुप 13 एलिमेंट। अब गैलियम के बैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसने एक बॉन्ड जहाँ बना लिया से, एक बॉन्ड जहाँ बना लिया से, एक बॉन्ड जहाँ बना लिया से, जहाँ पे ये बॉन्ड नहीं बना सकता। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है बट इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ एक होल, एक वैकेंसी रह जाएगी। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है जिससे वैलेंसीज या वैकेंसीज रह जाएंगी जिनको हम होल्स नाम देंगे। जहाँ जहाँ गैलियम ऐड किया होगा वहाँ वहाँ होल्स होंगे। अब ये होल्स माइग्रेट कर सकते हैं। अगर कोई इधर वाला इलेक्ट्रॉन जहाँ आता है तो होल जहाँ आ जाएगा, अगर कोई इधर वाला इलेक्ट्रॉन जहाँ आता है, इधर वाला इलेक्ट्रॉन जहाँ आता है तो होल जहाँ आ जाएगा। इस तरह ये होल्स माइग्रेट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम नाम देते हैं बच्चे पी टाइप सेमीकंडक्टर। रिवर्स ऑफ एन, एन फॉर नेगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से इसको नाम दिया गया पी टाइप पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, और इलेक्ट्रॉन की एक्सेस की वजह से इसको नाम दिया गया नेगेटिव या एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो जनरली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एन टाइप विच आर फॉर्म्ड बाय डोपिंग ग्रुप 14 एलिमेंट विद ग्रुप 15 एलिमेंट। जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम को हम डोप करेंगे फास्फोरस या आर्सेनिक के साथ, और बाय डोपिंग ग्रुप 14 एलिमेंट विद ग्रुप 13 एलिमेंट वी गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे कि हम जर्मेनियम को डोप करेंगे गैलियम के साथ या इंडियम के साथ, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने से एन नेगेटिव, एन टाइप नाम दिया गया। इसमें इलेक्ट्रॉन कम होने से, होल्स बनने से पी टाइप नाम दिया गया।
These N type and P type semiconductors are joined in various ways to form modern day electronic devices. So these are very important. So extrinsic semiconductors are the backbone of our electronic industry. तो बच्चे आज के लिए इतना ही, कल हम दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे. थैंक्स वेरी मच.